Okay, so let's start today's class. And today our topic is normalization and the different types of normalization. Okay, so in this lecture, I'll try to cover all the different types of normalizations with some examples. So first of all, let's define normalization. Normalization can be defined as the process of organizing the data in database to avoid data redundancy, insertion anomaly, update anomaly, and deletion anomaly. So a process of organizing data into tables in such a way that the results of using the database are always unambiguous and as intended. Such normalization is intrinsic to relational database theory. It may have the effect of duplicating the data within the database and often results in the creation of additional tables. So क्या बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके जरिए हम डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं ठीक है data redundancy means repetitions. Okay, so normally we don't want repetitions in our database, and to implement that, okay, to reduce that data redundancy, we depend on a technique that is known as data normalization. और data normalization के कारण हम जो है कुछ problems हैं insertion anomaly, update anomaly, and deletion anomaly. I have already explained these things in our DBMS lectures. So they can be actually dealt with this normalization. ठीक है एनोमली मतलब क्या है आप इंसर्शन कर रहे हो इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उसको कहेंगे हम इंसर्शन एनोमली इसी तरह कुछ अपडेट के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो उसको अपडेट एनोमली एंड डिलीशन के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो होगा डिलीशन एनोमली और ये तभी होता है जब आपका डाटा रिडंडेंसी जो है ना ज़्यादा होता है ठीक है सो नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं ठीक है नाउ if we talk about the types of normalization basically we have first normal form second normal form and third normal form अगर आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक मेंटेन कर लिया आपके डेटाबेस में आपने अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक मेंटेन कर लिया देन इट इज ओके okay so third normal is the you can say that industry recognized one means third normal form तक हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डेटाबेस को मेंटेन करें right but besides that also we have some other normal forms like more higher normal forms that is boys code normal form fourth normal form and fifth normal form ये जो लेक्चर है मैं जो अभी डिलीवर कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट CSIT एग्जामिनेशन नेट सेट और एनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ये नॉर्मलाइजेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही हैं और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा सारे नॉर्मल फॉर्म जो है कवर कर लूँ ठीक है तो कम टू द फर्स्ट वन दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म First normal form enforces the following criteria. First, eliminate repeating groups in the individual tables and create a separate table for each set of such related data and identify each set of related data with a primary key. तो मुझे अभी फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्या प्राइमरी की क्या है. I hope you all know what is primary key. Primary key is the attribute by which you can recognize the records of the table, other details of the table, right? So it uniquely defines or it uniquely identifies the other attributes value in that table. So that is our primary key. अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा जो भी रिपीटेशन होगा वो उसको हम हटाएंगे किस टाइप से अगर देखता हूं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं तब आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म we have the product table यहाँ पे आप देखो क्या क्या एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट आईडी कलर एंड प्राइस आप यहाँ पे एटॉमिसिटी जो है ना मतलब सिंगल एटॉम जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है देखो कलर 1 ब्लैक रेड रुपीज 200 2 ग्रीन रुपीज 150
3 red rupees 110. Similarly 4 green blue 260. 5th black 100. So where are the problems exists in this case of table is the first tuple, that is first row, and the fourth row. आप सभी को ये टेबल दिखाई दे रहा है ना? Yes sir. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट रो में है और फोर्थ रो में है. क्यों? क्योंकि ये जो कलर एट्रीब्यूट है उसका एक पार्टिकुलर सेल में, ठीक है, 1 क्रॉस जो 2 है, यहाँ पे 2 वैल्यू हमने क्या किया है, 2 वैल्यू रखा है इस पार्टिकुलर सेल में, जो कि अलाउ नहीं करता है. मतलब आपका अगर 2 वैल्यू रहेगा एक ही पार्टिकुलर इस एट्रीब्यूट का क्रॉस सेक्शन विथ रो में, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? तो 2 वैल्यू नहीं हो सकता यहाँ पे सिंगल वैल्यू रखना जरूरी है, ठीक है. देन ओनली यू कैन से दैट दैट टेबल विल बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सो यहाँ ब्लैक और रेड दोनों साथ में नहीं हो सकता, ग्रीन और ब्लू दोनों साथ में नहीं हो सकता. एक ही टुपल में ये दोनों वैल्यू यू कैन नॉट पुट देम टुगेदर. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू ब्रेक दिस into 2 rows. Let me show you. So this table is not in the first normal form because the color column contains multiple value. Multiple value हम allow नहीं करते हैं, ठीक है. So हमने क्या किया अभी, आप इस टेबल को देखो. इसको करने का 2 तरीके हैं. एक फर्स्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट आईडी प्राइस ये बना लिया, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी कलर ये वाला. मतलब आपने क्या किया, 2 टेबल में डिवाइड कर दिया. ये जो सिंगल टेबल था इसको 2 टेबल में डिवाइड कर दिया. राइट नाउ कोई कॉलम में क्या वैल्यू रिपीट हो रहा है? कैन यू टेल मी दैट वेदर सम वैल्यूज टुगेदर इन द सेम कॉलम? 2 वैल्यू आ रहे हैं एक सेल में, दिखाई दे रहे हैं अभी? No sir. डेफिनेटली नो. देखो कोई भी, जैसे कलर आपने लिए सब एक एक वैल्यू है यहाँ पे, प्राइस में आपने देख लिया सब एक एक वैल्यू है. तो आप मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है ये क्या है, अब ये दोनों टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे है, ठीक है. ये एक तरीका है. नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसी टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करने से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, सपोज ये जो ब्लैक रेड 200 रुपीज 200 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो. ध्यान से देखना, ठीक है. 1 ब्लैक रुपीज 210. देन अगेन उसके नीचे और एक रो लिखना, प्रोडक्ट आईडी सेम रहेगा, 1 रेड रुपीज 210, ठीक है. इसी तरह 4 के लिए कैसे लिखोगे, 4 ग्रीन रुपीज 260, 4 ब्लू रुपीज 260. जब तो 2 रिपीट हो रहा था तो वो एक ही साथ आ रहा था, अभी हमने उसको ब्रेक करके एक एक कर दिया. राइट क्या समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूँ अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में और ये एग्जांपल? प्लीज टेल मी whether this is clear or not. Yes sir, clear sir. ठीक है. सो ये करके देखना, जो मैंने अभी सेकंड तरीका बोला आप लोगों को, सेकंड तरीका के बारे में बताया आप लोगों को, ठीक है. ये चीज आप खुद करके देखना. एंड गाइस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट बाय योरसेल्फ. एक ना कोई एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन से आएंगे ही आएंगे, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ कम टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 2NF. A table is said to be in 2NF if first of all the first condition that this should be already in first normal form and no non-prime attribute is dependent on the proper subset of any candidate key of the table. इसी को हम normally बोलते हैं कि partial dependency. Partial dependency should not exist, otherwise we cannot say the table is in second normal form. पार्शियल डिपेंडेंसी को हम कैसे बोलते हैं, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल. राइट. सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब वो सारे एट्रीब्यूट हैं कि जो कैंडिडेट की को बनाया नहीं है, मतलब कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ठीक है. एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट.
ध्यान रखना, ठीक है। कैंडिडेट की हम एक से अधिक एट्रीब्यूट से बनाए, सपोज 2 or 3 एट्रीब्यूट्स, देन ईच ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स will be known as prime attribute. Are you getting me? If I am combining 2 and 3 attributes to form my candidate key, then each of the that attribute will be individually known as prime attribute, and that attribute which is not a part of the candidate key will be known as non-prime attribute. So non-prime attribute क्या है? कैंडिडेट की कोई भी प्रॉपर सबसेट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल को देखो, ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। टेबल parses details. This is the table we have. Now here we have the attributes customer ID, store ID and location. ठीक है, अब this table has a composite primary key, customer ID and store ID. The non-key attribute in this case is only one, that is location. And in this case, location depends on the store ID. So that is what? That is store ID is a part of customer ID and store ID. मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमने कैंडिडेट की बनाया है, कि कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी दोनों को कंबाइन करके बनाया है। समझ में आ रहा है ना? जैसे 1 1 एक का कैंडिडेट की का वैल्यू है 1 3 2 1 3 2, मतलब ये दोनों को 1 1 2 1 3 2 1 3 2 4 3, ये कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी दोनों को कंबाइन करके हमने कैंडिडेट की बनाया है। बट यहाँ पे जो लोकेशन है ये क्या होगा? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि लोकेशन तो इस कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। बट स्टोर आईडी अपने आप में कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है। सिमिलरली कस्टमर आईडी भी प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। बट आप इसको अच्छे से देखोगे तो देखोगे जो स्टोर आईडी है वो भी लोकेशन को इम्प्लाई कर रहा है। मतलब क्या है? स्टोर आईडी के जरिए भी हम लोकेशन को डिराइव कर सकते हैं। देखो 1 implies पटना, 1 implies पटना, 3 implies नोएडा, 3 implies नोएडा एंड 2 implies दिल्ली। सो दैट्स ऑल। सो 1 से पटना मिल रहा है, 2 से दिल्ली मिल रहा है, 3 से नोएडा मिल रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो स्टोर आईडी भी क्या कर रहे हैं? ये लोकेशन को डिराइव कर रहे हैं। जो क्या हो गया, आप ये जो कैंडिडेट की था हमारा, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी दोनों मिला के जो कैंडिडेट की मिला था, उसका आधा पार्ट क्या है? स्टोर आईडी है। और वो स्टोर आईडी भी इस लोकेशन जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उसको इम्प्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। दिस मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन दिस केस। सो टू मेक इट टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म we have to remove this partial dependency, क्योंकि अदरवाइज ये जो टेबल है ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉलम में दो वैल्यूज नहीं है, सब में एक एक है, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक ही चीज करना है, ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको हटाना है। तो कैसे करेंगे? सी दिस। फॉर दैट ऑल्सो वी विल डिकम्पोज दिस टेबल। और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, ये दोनों जब साथ में आ रहा था, स्टोर आईडी और लोकेशन, राइट, तो उसको मैं अलग टेबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी अपने आप में एक टेबल हो गया, टेबल पार्सेस 1 1 1 3 2 1 3 2 40, ये टेबल पार्सेस और टेबल स्टोर। अब यहाँ पे कोई भी टेबल में आपको पार्शियल डिपेंडेंसी दिखाई नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट की का कोई भी पार्ट दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई और डिराइव नहीं कर रहा। तो ये जो है अभी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे है। नाउ यू टेल मी whether this second normal form is clear to you or not. Clear? Yes, sir. Sir. Okay. Moving to the third normal form. आप देखो एक एक करके ऊपर जा रहे हैं। जब भी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात की थी तो एक ही चीज हमने रखा था, क्या है? वहाँ पे वैल्यू सिंगल होना चाहिए हर एक कॉलम में, ठीक है। डबल वैल्यू ट्रिपल वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए था, राइट। आप उसके ऊपर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आया जहाँ पे हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाया। तो और एक रिफाइनमेंट करके करके उसके ऊपर और क्या है, रेस्ट्रिक्शन डाल के हम एक एक हायर नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म। So third normal form क्या बोलते हैं? A table is said to be in third normal form
only if it already is in second normal form, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसका लोअर नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे होना ज़रूरी है, और उसके बाद क्या है कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब ये क्या है हम देखते हैं विद एग्जांपल। सो एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एन एनी कैंडिडेट की इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In other words, 3NF can be explained like this. Suppose a table is in 3 normal form, if it is in 2 normal form, and for every functional dependency, X implies Y, X should be a super key or Y is a prime attribute. ये दो कंडीशन में कोई एक अगर फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे कि ये टेबल 3 नॉर्मल फॉर्म पे है। कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। आप लोग सभी को पता है फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है, मतलब ये जो y है, y x से डिराइव हो रहा है, y x के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उस टेबल के लिए हमें सारे जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगा, लेट्स द स्ट्रक्चर x इम्प्लाइज y, यहाँ पे ये सभी के लिए ये दोनों में से एक कंडीशन जब फुलफिल होगा तब हम कहेंगे कि वो टेबल 3 नॉर्मल फॉर्म में है। पहला कंडीशन, आइदर x इज ए सुपर की ऑफ द टेबल। आपको पता है सुपर की क्या है, ठीक है। सुपर की इज द की बाय व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइड अदर एट्रीब्यूट्स वैल्यू, ओके, अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, ठीक है। या तो y प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब इन दोनों में से कोई एक होने से ही हो जाएगा क्या, आपका टेबल 3 नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हैव कंसीडर्ड अ टेबल बुक डिटेल्स। इन द टेबल इज टेबल में क्या है, बुक आईडी डिटरमाइंस जेनरल आईडी एंड जेनरल टाइप देन प्राइस, ये सभी इसका एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। देन जेनरल आईडी से हमें क्या पता लग रहा है, जेनरल टाइप। देयरफॉर बुक आईडी डिटरमाइन जेनरल टाइप वाया जेनरल आईडी। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बुक आईडी है, जेनरल आईडी है, जेनरल टाइप है, प्राइस है। बुक आईडी से हमें पता लग रहा है जेनरल आईडी, मतलब बोल सकते हैं बुक आईडी डिराइव जेनरल आईडी। अब ये जेनरल आईडी जो है इससे क्या पता लग रहा है, जेनरल टाइप। ये जेनरल टाइप इज बीइंग डिराइव फ्रॉम जेनरल आईडी। सो ये कंडीशन कैसा हो रहा है, x इंप्लाइज y एंड y इंप्लाइज z। और इससे अगर ऐसा हो रहा है कि x इंप्लाइज z, याद करना हमें मैथमेटिक्स में भी ये मिला था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसमें क्या था, x इंप्लाइज y एंड y इंप्लाइज z इंप्लाइज x इंप्लाइज z, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, राइट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बुक आईडी इंप्लाइज जनरल आईडी एंड जनरल आईडी इंप्लाइज जनरल टाइप एंड बुक आईडी इंप्लाइज जनरल टाइप। अगर ऐसा होगा तो इस टेबल में हम क्या बोलेंगे, इस टेबल में क्या है, then we will say that this table consists of transitive functional dependency. And if transitive functional dependency exists in a table, then we'll say that this table will not be in third normal form. So we try to remove this transitive functional dependency. Similarly, we'll decompose, first to convert into third normal form, we will decompose this table in such a way that this transitive dependency will be removed. आप एक कैसे करेंगे, देखो यहाँ बुक आईडी से जनरल आईडी और जनरल आईडी से जनरल टाइप। आप इन लोगों को अगर डिवाइड कर दूं दो अलग अलग टेबल में तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी गायब, ठीक है। तो हम बोल पाएंगे कि हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे है। लेट्स सी, मैं क्या किया यहाँ पे, बुक आईडी जनरल आईडी प्राइस एंड जनरल आईडी जनरल टाइप। आपने देखा कि मैंने बुक आईडी जनरल आईडी और जनरल टाइप को एक टेबल पे आप नहीं रखा हूँ, क्योंकि हमने देखा बुक आईडी से जनरल आईडी और जनरल आईडी से जनरल टाइप इंप्लाई हो रहा था, तो ओवरऑल बुक आईडी से जनरल टाइप इंप्लाई हो रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जनरल टाइप को दूसरी एक टेबल पे, दूसरा एक टेबल पे रख दिया। So I have kept general type in a different table because you have seen that book ID implies general ID and general ID implies general type. So overall book ID implies general type. Now as we have broken this into two different tables, in the first table book we have book ID, general ID and price.
And the second table, general, we have general ID and general type. Now you will not see that transitional dependency exists in these two tables. जब ये ट्रांजिशन डिपेंडेंसी हट गया है, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे तो ऑलरेडी था, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी मैंने हटा दिया है. तो क्या होगा, आप ये टेबल किस में होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म. राइट, नाउ यू टेल मी whether this third normal form is clear or not. Clear, sir. Clear? Okay. Good. Clear, sir. Okay. So moving to the next higher normal form, that is known as Boyce Codd normal form. Boyce Codd normal form. ठीक है. So Boyce Codd ने propose किया था, इसलिए Boyce Codd normal form. So ये मैंने जैसे कहा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही वो रिफाइन करके और टेक्सटिक्शन ला के ले आएंगे हम अपने नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है. तो इस जो ये तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म है, ये आप मान के चल सकते हो कि ये एडवांस वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि आपने ये देखा था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि x इम्प्लाइज y, जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने से ही ये टेबल क्या था, आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में था. राइट. अब इसको थोड़ा और एडवांस कर दिया हमने. क्या किया, जब x इम्प्लाइज y रहेगा, पहला केस में ये था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में या तो x सुपर की है या तो y प्राइम एट्रीब्यूट है. अब मैं सेकेंड वाला कंडीशन हटा दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया और रेस्ट्रिक्शन ले आया. इसमें क्या बोल दिया मैंने कि ये x अभी क्या सुपर की होना ही पड़ेगा. ठीक है. इफ x इज द सुपर की in this case of functional dependency, x implies y, then only we will say that this is in BCNF. Got it? So BCNF क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही एडवांस वर्जन है, तो इसलिए कभी कभी हम इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. The BCNF is also known as 3.5 normal form because this is the advanced version of 3 normal form. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. A table complies with BCNF if it is in 3 normal form, and for every functional dependency x implies y, x should be the super key of the table. टेबल ऑलरेडी 3NF होने में 3NF में होना चाहिए. उसके बाद हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x इम्प्लाइज y के लिए x जो है सुपर की होना ही पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये BCNF में है. लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ. तो मैंने ये टेबल कंसीडर किया है. यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स जो है ये की है. ठीक है. कंपोजिट की मतलब ये जो कैंडिडेट और सुपर की जो है मैंने बनाया है यहाँ पे स्टूडेंट एंड कोर्स. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या है यहाँ पे, अच्छे से ये टेबल को नोटिस करोगे. मैंने आप लोगों को मेरा जो लेक्चर था फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर तब बताया था कि कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी हम डिराइव करते हैं. आपका सेकेंड सेमिस्टर DBMS में मैंने इस चीज़ को अच्छे से बताया था, और याद नहीं है तो मैंने मेरा लेक्चर भी है शायद इसमें है लेक्चर, तो वो भी देख लेना. ठीक है. बाकी आप इस टेबल को नोटिस करके केयरफुली ऑब्जर्व करके ये बना सकते हो. देखना स्टूडेंट एंड कोर्स क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, टीचर. ठीक है. अमन DBMS आयुष. ठीक है. तो आदित्य DBMS राज. तो ये जो नाम स्टूडेंट का नाम चेंज हो रहा है तब टीचर भी चेंज हो रहा है. सो अभिनव विकम इम्प्लाइज राहुल, अमन इकम इम्प्लाइज राहुल. सो अभिनव DBMS इम्प्लाइज राज. तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिराइव कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट कोर्स दोनों मिलके टीचर को इम्प्लाई कर रहे हैं, और टीचर क्या है, टीचर भी एक सब्जेक्ट को, एक कोर्स को इम्प्लाई कर रहे हैं. ठीक है. देखना आयुष इम्प्लाइज DBMS, रस इम्प्लाइज DBMS. ठीक है. राहुल इम्प्लाइज ई-कॉमर्स एंड रस इम्प्लाइज DBMS. ठीक है. तो अब ये दोनों हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया. बट यहाँ पे देखना जो पहला वाला ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कोर्स सुपर की है. तो जो मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है स्टूडेंट कोर्स इम्प्लाइज टीचर, ये BCNF में है क्योंकि स्टूडेंट कोर्स यहाँ पे सुपर की है. ठीक है. कंडीशन सेटिस्फाइड, सो दिस इज इन BCNF. पर जो ये सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है टीचर इम्प्लाइज कोर्स, दिस इज नॉट इन BCNF, दिस इज इन 3NF ओनली. क्योंकि कोर्स जो है ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की मतलब सुपर की. सो कोर्स प्राइम एट्रीब्यूट है. ठीक है. प्राइम एट्रीब्यूट होने के कारण ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मैक्सिमम ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है. बट
क्योंकि ये टीचर सुपर की नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये BCNF में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है, क्योंकि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो टेबल BCNF में नहीं होगा। तो ये तीसरा कोर्स इसको हटाना पड़ेगा, ये जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे? Of course, we'll break into two tables. The first table student course and second course teacher. अब बात खत्म, दोनों पे दोनों ही जो है ना, student implies course ये हो रहा है and course implies teacher ये भी हो रहा है। तो ये दोनों में अभी BCNF सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में एक सुपर की हो गया, कोर्स अपने आप में की एक सुपर की हो गया, तो दोनों ये कंडीशन BCNF का सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ दिस टेबल विल बी इन BCNF. I hope this concept regarding BCNF is clear to you. Yes? Can I move Yes, to the sir. next higher normal form? Yes, sir. Okay, let's come to the higher normal form than BCNF, that is fourth normal form. ठीक है, आपने देख लिया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 30.5 नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF. नाउ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इससे ऊपर है. Fourth normal form is a level of database normalization where there are no non-trivial multi-value dependency other than a candidate key. यहाँ पे एक चीज होना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं क्या? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. ये क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को. It builds on the first three normal forms, first normal form, second normal form, and 3NF and BCNF. It states that in addition to a database meeting the requirements of BCNF, it must not contain more than one multi-value dependency. एक मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी जो कैंडिडेट की से जुड़े हुए हैं, ये ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखते हैं ये मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है. ठीक है, so what is multi-value dependency? Multi-value dependency occurs when two attributes in a table are independent of each other but both depend on a third attribute. A multi-value dependency consists of at least two attributes that are dependent on a third attribute, but that's why it always requires at least three attributes. Multi-value dependency का मतलब ये है, दो attributes जो है अपने आप में तो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बट वो दोनों ही जाके एक अलग एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट दे आर डिपेंडिंग ऑन ए थर्ड एट्रीब्यूट. इसका मतलब ये है, जब ऐसा अगर रहेगा कि दो अपने आप में इंडिपेंडेंट है बट एक तीसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाएंगे. ठीक है, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो एक होना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी की है और प्राइमरी की से तो सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव होते हैं. तो अपने आप आपका क्या होगा, जब प्राइमरी की है तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक रहेगा, बट एक से ज्यादा अलो नहीं करेगा. कहाँ पे? आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में. सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का एक क्वेश्चन जो मैंने देखा गेट नेट सभी में पूछते हैं, वो है कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए जिसके कारण मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो सकता है. ठीक है, सो द नंबर ऑफ मिनिमम एट्रीब्यूट्स बिकॉज ऑफ व्हिच दिस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मे एग्जिस्ट इज 3. 3 होगा तभी तो जाके ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगा. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Right. So today's first question to this lecture is that you will define what is multi-value dependency and what is the minimum number of attributes that should exist to have a multi-value dependency. आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है और कितना मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने से ये डिपेंडेंसी मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है, नाउ मैं एक एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे. देखा आपने बाइक मॉडल, मैन्युफैक्चर ईयर एंड कलर, ये बाइक टेबल के बारे में बता रहा हूँ. कुछ वैल्यूज हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अच्छे से देखना. आप इसको अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि कलर एंड मैन्युफैक्चर ईयर, ये जो कलर ये लास्ट में जो मैंने लिखा और मैन्युफैक्चर ईयर, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट दोनों किससे जुड़ा हुआ है? बाइक मॉडल से. आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये कलर जो है इस बाइक मॉडल के लिए होगा,
मैन्युफैक्चर ईयर भी इस बाइक मॉडल के लिए होगा। ये दोनों मतलब ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये कलर भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बल्कि ये जो मैन्युफैक्चर ईयर और कलर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। So color and manufacture year are dependent on bike model, but they are independent of each other. So in this case, we will call these two columns as a multi-valued dependent on bike. और this representation आप इस जो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो रहा है आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डबल एरो में लिखा हूँ, ड्रॉ किया हूँ, बल्कि एक सिंगल एरो नहीं लिखा हूँ, डबल एरो ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, सो ये विथ ए डबल एरो वी symbolize this multi-value dependency. Bike model is multi-value dependent, ये manufacturer year को imply कर रहे हैं, और bike model is also implying this color, but in what way? Multi-determined. Okay, so bike model multi-determined manufacturer year and bike model multi-determined color. Now I hope ये जो multi-value dependency का concept है आपको समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो आ गया। तो हम आप आते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट मेजर हॉबी, इस टेबल का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। सो कीज वी हैव, यहाँ पे कीज जो हमने बनाया है तीनों को मिला के, स्टूडेंट्स मेजर हॉबी, राइट। अब ये जो मेजर एंड हॉबी अपने आप में ये है बात, ये दोनों जो है ना स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, राइट। ये तो समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर टू यू? देखो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए मेजर है मैनेजमेंट और हॉबी है फुटबॉल। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट एंड फुटबॉल? नो। सो यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट मेजर एंड स्टूडेंट हॉबी, ठीक है। इन दोनों को मैंने ब्रेक ऑफ कर दिया दो टेबल पे, तब ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे आ जाएगा। क्यों? प्रॉब्लम पहले ये था क्योंकि ये मेजर हॉबी दोनों ही स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रहा था यहाँ पे। आप इनको ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, स्टूडेंट मेजर हो गया और स्टूडेंट हॉबी हो गया। इस टेबल में जो भी रिपीटेशन आ रहा था ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड करने के कारण आप ये वाला दोनों टेबल पे नहीं आएगा। मतलब क्या है, हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको आप रिमूव कर दिया बाय ब्रेकिंग दिस table into two tables, student measure and student hobby. See, in these two tables, you will not find such multi-value dependency because measure and hobby are no, they are in two different tables rather than in single table. अब जब measure और hobby एक ही टेबल में दोनों आता तो हम बोल सकते थे कि ये multi-value dependency है। अब जब मैंने दोनों को breakout करके दो अलग अलग टेबल में रख दिया है तो कैसे ये multi-value dependency आएगा, right? So now this table is in fourth normal form. Now you tell me whether this example of fourth normal form is clear to you or not. Clear, sir. ठीक है, आजकल क्वेश्चन मैंने देखा इंटरव्यू और ये समय फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में ज़्यादा पूछने लगा है। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन हमने देख लिया था, क्या था। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, where there are no non-trivial multi-value dependencies other than a candidate key। ठीक है, other than a candidate key मैंने लिखा हूँ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट कैंडिडेट की है तो ठीक है, स्टूडेंट इंप्लाइज मेजर। यहाँ पे इस टेबल में स्टूडेंट इंप्लाइज हॉबी, स्टूडेंट कैंडिडेट की है, ठीक है। बट जब दोनों को साथ में रख दिया था तब ये मेजर और हॉबी के कारण कुछ क्या हो रहा था, कुछ रिपीटेशन इसमें आ रहा था, जिसको कि मैं हम अब ब्रेक करके दो अलग टेबल में रख देने से ये हट गया, राइट। So now this table is in fourth normal form. Now, if this is clear, I will move to the next highest normal form, that is fifth normal form. Can I start fifth normal form? Yes, sir. Okay, thank you. So a database is said to be in fifth normal form if and only if it is already in the fourth normal form, and if we can decompose this table
it will further into to eliminate the redundancy and anomaly. And when we rejoin the decomposed table by means of some candidate key, we should not be losing the original data or any new record set should not arise. मतलब ये है joining two or more decomposed tables should not lose records or create new records. आप इसको ध्यान से देखो, इसको प्रोजेक्ट जॉइन डिपेंडेंसी भी कहा जाता है. प्रोजेक्ट जॉइन डिपेंडेंसी को हटा दोगे तो आपका टेबल क्या होगा? फ्लिप नॉर्मल फॉर्म में होगा. इसका पहला कंडीशन क्या है? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल. मतलब जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो नहीं होना चाहिए. राइट, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद और एक कंडीशन क्या है? कुछ रिडंडेंसी को हटाने के लिए, एनोमली को हटाने के लिए इस टेबल को आपने फर्दर डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करने के बाद फिर से सपोज रिजॉइन किया. अब जब रिजॉइन करोगे कैंडिडेट की के जरिए, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रिजॉइन करने के कारण कुछ डेटा लॉस हो गया या तो कुछ नया डेटा क्रिएट हो गया. जैसा था वैसे ही रहना चाहिए. The table before the decomposition should be same as table after the decomposition by in regard to the data composition. Then we'll say that that database is in 5 normal form. Are you getting me? So I am repeating again that for a table to be or for a database to be in 5 normal form, first condition that it should be in 4th normal form, and decompose the table to remove or eliminate the redundancy and anomaly. Then again, if we rejoin them with the help of candidate key, then there should not be some loss of data occurring in that new set of record or in that new composed table, or there should not be some new table data is being generated because of this joining. ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए. तो ये दोनों अगर फुलफिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये टेबल 5 नॉर्मल फॉर्म में है. तो लूजलेस डिकम्पोजिशन के बारे में पहले ही मैं बता दिया था आप लोगों को. लूजलेस एंड लूजी जॉइंट डिकम्पोजिशन अगर याद है तो आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो. लूजलेस मतलब यही है ना, जब आप उसको डिकम्पोज किया तो कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे हम डिकम्पोज करके फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो हम इस 5 नॉर्मल फॉर्म को प्रोजेक्शन जॉइन नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि आपने डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करने के बाद फिर से ज्वाइन किया और तब भी आपका कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा है, साथ ही आपका कोई नया डाटा क्रिएट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल फिर से लो. सेलर कंपनी प्रोडक्ट. सेलर इज मल्टी वैल्यू, मतलब ये दोनों कंपनी और प्रोडक्ट दोनों को इम्प्लाई कर रहे हैं. ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी था, इसको हटा के हमने ब्रेकअप कर दिया था ये दोनों पे. आर यू गेटिंग मी? अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, यहाँ पे कंबाइन कैसे कर सकता हूँ? सेलर अमन, ये जो अमन, आदित्य, रीता, विनब, ये जो है ये सारे वैल्यूज है, ये किसके अगेंस्ट है? सेलर के अगेंस्ट है. राइट, ये कैंडिडेट की सेलर है, तो इसके अगेंस्ट पे अब अगर हम इन दोनों टेबल को कंबाइन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जाके हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? जो वैल्यूज था वैसे का वैसे ही आ जाना चाहिए. अदरवाइज विल नॉट से दैट द टेबल इज इन 5th नॉर्मल फॉर्म. आप ये दोनों टेबल को अच्छे से देख लो और अब जाके ये वाला टेबल देख लो, दिखाई दे रहा है? अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मैंने जब ये डिकम्पोज किया इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सॉरी 5th नॉर्मल फॉर्म में, जो ये टेबल को फर्स्ट टेबल को डिकम्पोज करके ये दोनों में बनाया, तब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हट गया. अब ये दोनों को कंबाइन करके आपको जो टेबल मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाट विल बी दैट टेबल आफ्टर combining or after joining these two tables, whether all the values are there or whether some new data values are being created or not. अगर क्रिएट होगा तो हम नहीं कहेंगे कि ये 5 नॉर्मल फॉर्म में है, और या तो कुछ लॉस होगा तब भी हम नहीं कहेंगे ये 5 नॉर्मल फॉर्म पे है. राइट, I hope the question is clear to you. You will answer this question through comment. So with this I have covered all this normal form. Is this 5th normal form? I hope this is clear to you. ठीक है, तो ये 5th नॉर्मल फॉर्म, 4th नॉर्मल फॉर्म, 3rd BCNF मैंने 3 नॉर्मल फॉर्म, 3.5 नॉर्मल फॉर्म, सॉरी. Then we have 3 normal form, then 2nd normal form, then 1st normal form.
I hope all these normal forms are clear to you. Right? So, Sir, if sir, hmm? sir, Please. fifth normal form আপোনাৰ চেলাৰৰ নামটো নাহিব নেকি আপোনাৰ ডিকম্প'জ কৰাৰ পাছত আকৌ ৰিজইন কৰাৰ পাছত? কিয় নাহিব সেইটোকেতো মই তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ। that the same question that I am asking you, that आप लोगों को क्या करना है, what you have to do, तुम्हारे की करेगा, you will join this two table. अगर थोड़ा सा डाउट रहेगा तो मेरा जो लेक्चर था डिकम्पोजिशन के ऊपर वो देख लेना। बाकी बहुत सिंपल है, ये दोनों को कंबाइन करना, ज्वाइन करना। उसके बाद जो भी टेबल मिलेगा वो टेबल क्या इसके जैसा है या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टू टेबल्स, whether the new joined table is same as this table or not, this thing you need to answer me through comment. आप ये दोनों को कंबाइन करके आज देखोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया ये? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? यस और नो? हैव यू टेकन दिस सर स्क्रीनशॉट वीडियो और मिलेगा ना सर? तो वीडियो मिलना से देख। ऑफ कोर्स, भूल ही गया था, वीडियो मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये दोनों को आप कंबाइन करोगे, एक कॉपी में कंबाइन करके जो भी वैल्यू मिलेगा वो आप देखोगे और मुझे बताओगे कि इसमें जो भी वैल्यू मिल रहा है क्या ये टेबल के बराबर है। कोई अगर नया रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है तब आप नहीं कहोगे कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, मतलब ये टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे नहीं होगा, या तो कुछ लूज भी हो रहा है तब भी आप नहीं बोलोगे कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे है। सो दिस इज योर होमवर्क टुडे। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया, एक बार ये भी करते। मतलब ये सर नो बोलना है कि सर टेबल का जो वैल्यू होगा उसको टेबल भी भी कमेंट बना में लेना लिखना है। देखो येस और नो नहीं, टेबल भी बनाना, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, है। okay, so that's all Yes, for sir. today. I have covered all the normal forms in the single lecture. I hope this will help you in some future purposes also. ठीक है, Yes, sir. help करेगा। तो with this I am going to terminate today's class. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now you may leave the class.